If I take about chemistry, you know the important topics in chemistry: thermodynamics, chemical bonding, and solutions. They must be on your fingertips. There should not be any preferential topic in organic chemistry. You know how questions in organic chemistry are asked. आपको हेलो हेलाइट से कोई प्रेफरेंशियल टॉपिक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यू नो देयर मे बी अ क्वेश्चन जिसमें हेलो हेलाइट की एक रिएक्शन है जो आगे जाके एल्डिहाइड्स और कीटोन में कीटोन से रिलेटेड रिएक्शन आएगी और फिर आगे जाके अल्कोहल और ईथर में बदल सकती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 से 4 रिएक्शंस इंटरलिंक्ड आती हैं 3 से 4 चैप्टर से। सो इट्स बेटर इफ यू डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंशियल टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। What's important is biomolecules, chemistry in everyday life, polymers, environmental chemistry, and hydrocarbons. So I was talking about biomolecules, chemistry in everyday life, polymers, and environmental chemistry. अगर आप पिछले साल के पेपर्स देखें, इन हर चारों चैप्टर से एक ही क्वेश्चन तो आया ही है। Most probably, in most cases, they are the deciding factors. In the past, many topics have been decided by the questions asked from these particular topics. So please don't be ignorant for these topics. And biomolecules, in chemistry in everyday life, if possible, please revise this structure or learn these structures given in this, because past 2 years में जब से एनटी आया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली नीट में भी ये जल्दी आने वाला है। सो इट्स ओके, और इफ यू माइट लर्न द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड्स, not like ranitidine and something like this, it's better if you learn the structure of some of the compounds which have been asked in JEE Mains. Now, you should have last minute revision points. I prepared last minute revision points from 4 to 5 months earlier. So it doesn't matter, but have some last minute revision points. Moreover, you can find, if you don't have any, you can find them on Google or something like this. Google last minute revision points for chemistry. You'll find very nice, handy material for this. So if we talk about physical chemistry, believe it or not, it is all about formulas. अगर आप solutions के क्वेश्चन देखें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्वेश्चन आ रहे हैं इन मोस्ट केसेस पिछले सालों में। सो फिजिकल केमिस्ट्री आप अच्छे से कर सकते हैं अगर आपने कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करके। मैं ये नहीं कह रहा कॉन्सेप्ट आप भूलें, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, फिर भी नीट का क्वेश्चन कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, अगर आपने फॉर्मूला देख रखा है, कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है क्वेश्चन का वो देख रखा है। सॉल्यूशंस का सिंपल एग्जांपल लिया है, पिछले कई सालों से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही क्वेश्चन आ रहा है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाया, आंसर निकला। सो इट्स क्वाइट सिंपल अगर आपको स्ट्रक्चर और फॉर्मूला पता है तो। लेकिन mind it, chemistry and physics don't interchange the formulas. You have been well aware with the formulas of thermodynamics of chemistry and thermodynamics of physics. There is a difference of a negative sign in the formula, which may change the option completely. So don't interchange the formulas. ध्यान रखें, अगर आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि हाँ मैं केमिस्ट्री का कर रहा हूँ, और फिजिक्स का तो हाँ मैं फिजिक्स का कर रहा हूँ। डोंट इंटरचेंज द फॉर्मूलाज। एक सिली मिस्टेक की वजह से आप अपने मार्क्स गंवाना पसंद नहीं करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लीज रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी। आई थिंक सो टीचर्स के नोट्स भी इतने काम नहीं आते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप प्रेस्टिजियस कोचिंग में भी हैं तो। सो प्रेफर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटी. It's similar to studying biology. Moreover, questions are asked as in biology, so they are quite similar in this regard. NTA asks questions directly from the sentences of inorganic chemistry NCERT chapters. तो अगर आपने NCERT नहीं कर रखी है तो एटलीस्ट प्लीज PDF और PD और F ब्लॉक की NCERT जरूर कर लें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि P ब्लॉक से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो ना तो टीचर्स ने आपको कराए हैं और वो केवल NCERT में ही दे रखे हैं, जिनका डिस्कशन भी नहीं होता इतना। सो इट्स बेटर अगर आप केवल PDF ब्लॉक की तो NCERT कर ही लें, एटलीस्ट रिवाइज कर लें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में D, PD और F ब्लॉक की आई कंटिन्यू विद दिस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे थ्योरी पार्ट एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे कुछ टेबल्स बनी हुई हैं और कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं। इनसे आप ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि डेंसिटी वगैरह का आ गया, या फिर कोई भी चीज का ऑर्डर आ सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई गिव एन एग्जांपल हियर। 2020 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें सिंपली दे हैव आस्क्ड what do we call the name of a 105 atomic number element? What do we call the name of a 108 atomic number? It was a match the following type question, and it was given in 11th inorganic chemistry NCERT. So I asked, after completion of paper, I asked about my colleagues and my friends. Very few of them have completed that particular part, because कोई भी 100 से ऊपर के एलिमेंट के नाम नहीं बताता, मतलब। सो इट्स बेटर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, तो एटलीस्ट 2 एनसीईआरटी फ्रॉम पीडीएफ ब्लॉक्स।